क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 59 तुला you should assume that today's date is 1st of September 2025. Your client Tula requires advice on the following matters. Tula के बारे में ये सब चीजें हैं। हम्म, ये देखते हैं पहले। इसमें देयर वाज सपोर्टिंग कैलकुलेशन द इनकम टैक्स implications for Tula in the tax year 25-26 in respect of the interest paid on 20,000 loan. She will she will take out from the bank, and the interest received on 80,000 loans she will make to Beleza Limited. ये दोनों चीजें हमको बतानी है। Tula is a resident and domiciled in the UK. Is a sole trader and shareholder of Beleza Limited. Earns an annual salary of 60,000 from Beleza Limited. Beleza Limited is Tula's only source of income, so she is a higher rate taxpayer for all relevant tax years. Okay, wishes to expand the trading activities of Beleza Limited and will partly finance this by selling some shares to her brother Eros and using the gross proceeds to make a personal loan to the company, which is to expand the trading activity of Beleza and will partly finance this by selling some shares to her brother. ठीक है. Transferred assets was 3 to a trust for the benefit of her grandchildren on 9th of April 25. Beleza Limited has 10,000 issued ordinary shares, all of which are owned by Tula, is an unquoted trading company, has always been a closed company, pays annual dividend of 12,000, that is 1.2 per share in December each year. Tula's sale of shares and loan to Beleza Limited. Tula will sell 30% of her shares in Beleza Limited to her brother Eros on 30th of June for 60,000. This will represent a sale at undervalue for the purposes of an inheritance tax. On the same day, Tula will borrow 20,000 from a bank at an interest rate of 9% per. हाँ, so हम लोग ऑन 30th of September 25 कर रहे हैं, ठीक है ना? और हमारा टैक्स ईयर 25-26 के लिए पूछा गया है. सो सितंबर अक्टूबर नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 महीनों के लिए. और सेम डे तुला विल बोरो 20,000 फ्रॉम बैंक एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%. सो नाउ the amount of money which Tula will be borrowing from the bank um will have to pay Tula will have to pay interest on the amount of money which Tula has borrowed from the bank, ठीक है ना? So 9%, so 20,000 into 9% into 6/12, which is 900. मेरे को ये पता है, ठीक है ना? क्योंकि 1,800 into 6/12 तो 900. And Tula is also lending the money 80,000 to Beleza Limited on 1st of October 25, but at an interest rate of 7% per annum. अभी तुला जो है एक कंपनी को लोन दे रही है 7% पे. सो नाउ 80,000 इंटू 7% इंटू 6/12 विल बी एन इनकम टैक्स, सॉरी, विल बी अ कॉर्पोरेशन टैक्स डिडक्शन. सॉरी, बेसिकली ये जो इंटरेस्ट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट बेलेजा लिमिटेड पे कर रही है तुला को, दैट विल बी एन इंटरेस्ट डिडक्शन. बट द इंटरेस्ट इनकम विच तुला इज गेटिंग फ्रॉम बेलेजा लिमिटेड, दैट that interest विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, क्योंकि वो हायर रेट टैक्स पेयर है, बराबर है. तो अभी मैं क्या करूंगा, 80,000 इंटू 7%, विच इज 5,600 इंटू अगेन 6/12, विच इज 2,800. ठीक है ना? लोन्स ऑफ वो पेमेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, तो 900. हाँ, ये है. एंड ये क्लोज कंपनी है, तो हाँ ठीक है. हाँ, क्लोज कंपनी तो क्या फिर, मतलब शी इज द ओनली, ये ना क्या बोलते हैं, सोल डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर. सो हाँ, वही लोन दे रही है उसको. जो कंपनी से मिल रहा है वो इंटरेस्ट की तरह ही शो होगा. यस, आई थिंक बाकी सब चीजें बिल्कुल सही है. चेक कर लेते हैं. 29th. ये रहा 900. परफेक्ट.
तो अभी उसका डिडक्शन, हाँ, तो इसको 360 टैक्स सेव हो रहा है बेसिकली। इसका आंसर देते हैं लोगों ने कैसे लिखा है, तुला विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स रिलीफ ऑन द इंटरेस्ट शी पेज ऑन द बैंक लोन शी हैज टेकन आउट to partially finance the loan to Beleza Limited. This is because Beleza Limited is a closed trading company. The loan is to be applied wholly and exclusively for the business purposes. बराबर है, तुला होल्ड्स मटेरियल इंटरेस्ट, हाँ, तो Beleza Limited is a closed company. She holds material interest, ये एक है, एंड मटेरियल इंटरेस्ट है, एंड द लोन इज फॉर बिजनेस पर्पसेस, चलेगा। चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन टू बेलेजा, तो ये देखो 80,000 टू 7/12, बिल्कुल भी हमको वो 2% ऐड नहीं करने। जब मैंने पहली बार सोच किया तो मैंने क्या था, मैंने इसमें 2% ऐड किए थे कि इसको मैंने 7% से 9% बना दिया था, बिकॉज ये क्लोज कंपनी है, तो बट वैसा नहीं करना है। इसको जितने परसेंट पे दिया है वही है। एज शी इज अ हायर रेट टैक्स पेयर फर्स्ट 500 ऑफ द, अरे हाँ, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बेसिकली शी इज अ हायर रेट टैक्स पेयर, तो इसका पहला 500 जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। बस ये बोलना चाहते हैं कि इसको टैक्स जो है 500 का, वो SNRB सेविंग्स निल रेट बैंड, और ऊपर का जो 2,500 है उसके ऊपर टैक्स पे करना है, ठीक है ना, तो वो हम बोल देंगे फाइन। इसलिए वो 6 मार्क्स है एक्चुअली। मैं वही सोच रहा था इतने से मार्क्स 6 मार्क्स क्यों है, तो वो सेविंग्स और इसमें ऐसा वो स्प्लिट लाने के लिए है। Explain with the help of supporting calculations, Eros is additional income tax liability for the tax year 25-26 as a result of the provision of the van and the computer by Beleza Limited, ठीक है ना, और by Beleza Limited, Eros will not be employed by Beleza Limited will have a trading income in the tax year 25-26 in addition to the dividend from Beleza Limited will be a higher rate taxpayer, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एसेट्स टू एरोस बाय बेलेजा लिमिटेड फ्रॉम 1 October 25, बेलेजा लिमिटेड विल प्रोवाइड एरोस विद द यूज ऑफ न्यू वैन फॉर प्राइवेट पर्पसेस, ठीक है। तो मेरे को किसके लिए बताना है, बेसिकली एरोस के लिए बताना है ना, इनकम टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो मुझे वैन दे रहे हैं, एक तो वैन का तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3960। अरे, हम्म, ये देखो वैन का 3960 परफेक्ट है। तो फिर ये 3960 का बेनिफिट बेसिकली मेरे को मिलेगा। लेकिन अभी मेरे को कब दे रहे हैं बेनिफिट, क्या ये मेरे को साल के स्टार्टिंग में दे रहे हैं कि एंड मतलब बीच में दे रहे हैं, वो सब चीजें खाली अब अपने को मतलब वो चेक करनी पड़ेंगी। ऑन फ्रॉम 1 October 25 Brazil लिमिटेड विल प्रोवाइड एरोस विद न्यू कंपनी मेट्रो, ठीक है। तो आ, हाँ, तो 3960 इंटू 6/12 होगा। अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतना खराब क्यों बन गया भाई। 3960 इंटू 6/12 होगा, क्योंकि सिर्फ 6 महीनों के लिए दे रहे हैं ऐसा। ब्रेजा लिमिटेड विल नॉट प्रोवाइड एनी फ्यूल, तो फ्यूल नहीं है, तो इसलिए फ्यूल की चीज नहीं आएगी 757 की। आगे बढ़ सकते हैं। फ्रॉम 1 October 25 बेलेजा विल ऑल्सो लोन अ न्यू कंप्यूटर विद अ कॉस्ट ऑफ 1,300 टू एरोस, तो फॉर इज पर्सनल यूज, एक तो दिया हुआ उन्होंने न्यू कंप्यूटर तो इसका इसका 20%, दैट विल बी माई टैक्सेबल बेनिफिट, मतलब इसका 20%, एंड अगेन 6/12, क्योंकि 6 महीनों के तो दे रहे हैं। अच्छा, October 25, तो इसका 260, एंड 260 का 6/12 इज 130, तो 130 एंड ऊपर 3960 का हाफ, वो कितना होता है भाई, उसके लिए कैलसी लगेगा। 3960 6/12, 1980 ये तो आने चाहिए। taxable benefits to Eros. ये रहा। Eros will be a participator in Beleza Limited for the close company purposes, as he will not be a director or employee of the company. The amount of taxable benefit in respect of the provision of the van and the computer will be taxed to him as a distribution. The amount of a taxable benefit in respect of the van
will be 1980 and 130, as Eros will also receive dividend of 3600 from Beleza Limited. Wait, what? Similar that a dividend nil rate van will already be accounted for. Eros will have an additional income tax liability in respect of the provision of the assets. ओके हाँ, बेसिकली ये क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं है ना रे कंपनी का, ये एम्प्लॉय नहीं है, ही इज जस्ट, ये देखो, ही इज जस्ट अ शेयर होल्डर। अगर हम शेयर होल्डर को बेनिफिट दे रहे हैं तो बेसिकली हमको 33.75% पे देना होगा, ऐसा है। और अच्छा, ये लोग मुझे 12,000 का डिविडेंड हर साल पे करते हैं, और मेरे पास 30% होल्डिंग है तुला की। ये देखो, तुला मेरे को दे रही है ना बेसिकली अभी, तो बेसिकली मेरे को 3600 के डिविडेंड्स मिलने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे निलरेट बैंड यूज नहीं किया है। और 1980 प्लस 130 पे 33.75% चार्ज करके बता दिया कि ये इसका इनकम टैक्स पेएबल होगा, बिकॉज ही इज अ, मतलब वो शेयर होल्डर, एंड एनी इनकम और एनी, मतलब मनी दैट ही हैज गॉट फ्रॉम द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज, मतलब वो डिविडेंड्स, ऐसा। ठीक है ना। अब आगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ तुलास प्लान सेल एट अंडर वैल्यू ऑफ बेलेजा लिमिटेड शेयर्स टू एरोस, explain whether or not BPR will be available if Tula dies within 7 years of this sale. Yes, BPR is available if Tula dies within 7 years of the sale, given that given that Eros still holds those shares, uh, ठीक है ना, and they are still being used in the business purpose, or they are still being, uh, they have still been used as a business purpose. That's it. For the business purpose, not at the for the business purpose. um अब आते हैं, नहीं ये तो हो गया। आगे, explain with the help of supporting calculations Eros's potential liability to inheritance tax liability on the assumption that Tula dies on 31st of March 2031 and no BPR, अच्छा, and BPR is not available. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ ऐसे दिया हुआ है, तुलास फादर हैड सब्सक्राइब फॉर 100% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स इन बेलेजा लिमिटेड ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ऑन 1st of January 17। तुला इनहेरिटेड द शेयर्स फ्रॉम हर फादर्स डेथ ऑन 14th of June 2024। ठीक है भाई, हाँ ये 56 था, ये 59। तुला वैल्यू बिफोर द ट्रांसफर, वैल्यू आफ्टर द ट्रांसफर। ट्रांसफर वैल्यू पर शेयर, this minus this value, देखो, तुला के फादर ने 100% सब्सक्राइब किया हुआ था, फिर तुला को वो चीज इनहेरिट हो गई थी, तो उसको 100% था, तो 100% के लिए वैल्यू है 441.8 की, 41.8। और यहाँ पे है, जब भी तुला ने अपने भाई को 30% दे दिए उसमें से, तो तुला को आ गया 70। तो 35.1। इसलिए ये मैंने पता नहीं क्यों किया, ये दोनों मैटर नहीं करते। शेयर्स पे आते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, ऑल ऑफ विच वर ओन्ड बाय तुला, तो 10,000 के 10,000 थे, उसमें से अभी मैंने 30% मेरे भाई को दे दिए, तो मेरे पास 70 बचे, तो 1730।
ये आ गया मेरे को वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर। परफेक्ट। सो नाउ पर्टिकुलर्स अमाउंट, मुझे मिल गया मेरा ट्रांसफर वैल्यू विच इज दिस लेस एनुअल एग्जेम्पशन ऑफ द करंट ईयर। लेकिन एक मिनट, मैंने एक्चुअली कुछ ट्रस्ट को दिया हुआ है ऊपर 3,50,000 में 9 जनवरी 2025 को दिया हुआ है। और ये मेरा टैक्स ईयर भी 25-26 ही है शायद। मैंने इसको कब दिया मेरे भाई को? हाँ, कहाँ है? हाँ, 30th of September 2025। सो देर फोर, एंड एज आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू अ ट्रस्ट, मेरे को मतलब वो नाइन्थ इसको ही किया है, तो एनुअल एग्जेम्पशन ऑफ द करंट ईयर एंड एनुअल एग्जेम्पशन ऑफ द प्रीवियस ईयर दोनों मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा भाई मुझे कुछ पे भी कर रहा था। 60 विल बोरो लैंड, नहीं, हाँ ये रहा, फॉर 60,000। भाई मेरे को 60,000 पे कर रहा है, सो दिस इज लेस अमाउंट पेड विच इज 60,000। फिर ये बनता है मेरा टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर मेरा डेट टैक्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि लाइफ टाइम में कुछ टैक्स पेएबल नहीं होगा। ठीक है ना? शी हैज डाइड ऑन 1st of January 31, 01/01/2031, but the gift was transferred on 30th of September 2025। तो पिछले अभी मेरे को टैपर रिलीफ मिलेगा। टैपर रिलीफ ऑफ हाउ मच परसेंट? बट 25 से 30 5 साल होते हैं। 30 के बाद 31 के बीच में, तो मैं सो 5 to 6 years, विच इज विच इज 60%। तो इसका 0.6 नेट टैक्स पेएबल वुड बी 17,968। ये मेरे भाई ने मेरे को पे किया हुआ है। Beleza is an uncoded trading company, so the shares are eligible for BPR. Although Tula will not have, although Tula will not have owned the shares for 2 years, which sells them on 30th. एक minute, although Tula will not have owned shares for 2 years, when she sells them on 30th of September to, okay, the ownership period requirement is deemed to have been satisfied because the shares are eligible for BPR. When Tula acquired them from her father, Tula acquired the shares as a result of her father's death. Accordingly, BPR will be available provided Eros still retains the shares. Okay, हाँ, ये तो अपन ने बोला एंड दे रिमेन रिलेवेंट बिजनेस प्रॉपर्टी। अपन ना आंसर ही ये था एक्चुअली एक लाइन का। उन्होंने उसको ही लास्ट में लिखा हुआ है। बेसिकली वो लोग क्या बोलना चाहते हैं कि ये अपन को क्लिक नहीं हुआ था, ये इन्होंने क्या बोलना चाहते हैं कि शी इनहेरिटेड हर शेयर्स फ्रॉम हर फादर फ्रॉम 14th of January 2024। शी डिड नॉट हेल्ड दीज शेयर्स फॉर 2 years, बट हर फादर हैड हेल्ड इट फॉर मोर देन 7 years एंड दैट इज इनफ। सो वो क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है ना, फॉर बीपीआर बेसिकली। चलता है। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। एज पोटेंशियल ये वाला एग्जेम्पशन वाला अमाउंट, ये देखो, रिसीव फ्रॉम एरर्स, इसका नाम है डिमिनिशन इन द वैल्यू। ओके, डिमिन्यूशन इन द वैल्यू, बेसिकली कुछ नहीं, मेरे किसी ने मेरे को पे कर दिया उस वैल्यू के लिए, वही है वो। ठीक है ना? तो कितना पे नहीं किया है उतना उसका टैक्सेबल बेनिफिट है, जितना उसका टैक्सेबल बेनिफिट है उसके उतने के ऊपर अभी उस बंदे को वहां पे टैक्स भरना है।
उतना ही है।